Yes, good morning students. Now we are starting with the geometry section of your syllabus, that is practical geometry. So we will start with exercise 14.1. First thing, for geometry you need very sharp pencil, scale, compass box, compass or rounder you call it, protractor. And it should be, your construction should be very neat and clean. So you know how to draw a circle. You have learned in earlier class also, in 4th also and 5th also. So here again 14.1 is very easy, just the revision of the construction what we have done in earlier class. So exercise 14.1, question 1 and 2, we are doing it together. So first question is draw a circle of radius 3.2. वो सर्कल ड्रॉ करना है और उसी सेंटर से क्वेश्चन 2 बोल रहे हैं विद द सेम सेंटर O ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. So first part we will draw circle of radius 3.2 centimeter. Now you know how to draw it. You can draw it in, it's not necessary you have to draw in plain page only. In ruled book also you can draw it. So I will take 3.2 in my scale. 3 पॉइंट ले लिया. पहले आपको देखना है ये एक लेवल पे है, कंपास का टिप और इस स्केल पेंसिल का लिड. नाउ यू विल टेक 3.2 in your compass and with this radius I will draw a circle. With the free hand you have to draw this circle. Yes. अभी जो भी सेंटर आता है 3.2, जो सेंटर आता है उसको मैं मार्क करूंगी O, और जैसा ये मेरा रेडियस है 4 सेंटीमीटर तो मैं इसको मेंशन भी करूंगी. 3.2 सेंटीमीटर मेरा रेडियस है. आई विल ड्रॉ टेक वन पॉइंट हियर एंड मार्क इट एज O. So here R is 3.2 centimeter. So OA is my radius and it is 3.2 centimeter. Now going to question 2, with the same circle O draw two circles of radius 4 centimeter and 2.5. अभी इसी सर्कल के सेंटर के साथ मुझे दो सर्कल बनाने हैं. एक बनाना है 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल. अभी मैंने यहाँ 4 ले लिया है. आई हैव टेकन 4 सेंटीमीटर इन माई स्केल. मेजरमेंट आई हैव टेकन एज 4 सेंटीमीटर रेडियस. नाउ विथ दिस सेंटर अगेन आई विल ड्रॉ अ स्मूथ सर्कल. यस, ये हो गया मेरा रेडियस ये हो गया 4 सेंटीमीटर. तो मैं इसको एक पॉइंट मार्क कर दूंगी और बता दूंगी उसका रेडियस. सो अगेन विथ सेंटर O एंड हियर आई विल टेक पॉइंट B और इसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर. तो दोनों रेडियस मैंने मार्क कर दिए. अभी तीसरा रेडियस क्या करना है, दैट इज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. सेंटर सेम ही होना चाहिए विथ O एज सेंटर. सो अगेन आई विल टेक 2.5 सेंटीमीटर ऑन स्केल. स्केल में मैं 2.5 ले लूंगी. यस, एंड विथ सेंटर O I will draw another circle.
Yes. So this is OB is 4 centimeter, OA is 3.2. अभी मैं रेडियस लेती हूं OC, इसको मार्क कर दूंगी और इसका R है 2.5 सेंटीमीटर. So I can tell the various radius. OA इसका रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर, OB है 4 सेंटीमीटर और OC है 2.5 सेंटीमीटर. तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड सॉल्यूशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कंबाइन किया है. विथ सेंटर O I have made 3 circle. First is of 3.2. This completes your question 1 answer. With the same center I have drawn 2.5 radius circle, and with the same center I have drawn this circle radius of 4 centimeter, and I have marked the radius. OA is equal to 3.2, OB is 4 centimeter and OC is 2.5 centimeter. So this completes your question 1 and 2 solution. So hope you find it easy. Now we will go to question 2. Yes, going to question 2. Draw a circle, any two of its diameters. If you join the two ends of the diameters, what is the figure obtained? And what figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check the answer? So you have to draw a circle of any two of its diameter. एक सर्कल बनाना है, उसके any कोई भी दो डायमीटर. If you draw a circle any two of its diameter and join the ends, what is the figure obtained? तो पहला पार्ट क्या करना है, हमको सर्कल बनाना है, दो डायमीटर लेने हैं कोई भी, और उसके एंड्स को ज्वाइन करना है, देखना है हमको कौन सा फिगर मिल रहा है. सो फर्स्ट वी विल डू दैट. सो आई विल टेक एनी रेडियस. मैं 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले रही हूं. यस, 4 सेंटीमीटर के रेडियस से नाउ आई विल ड्रॉ द सर्कल. यस, सर्कल इज ड्रॉन. अभी मैं एक सेंटर मार्क करूंगी O. अभी कोई भी डायमीटर, दो डायमीटर लेने. अभी ऐसा बोले यू जॉइन द एंड्स ऑफ दिस, एनी पहले लेना है एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर. ओके, हम लोग पहले दो डायमीटर ले लेंगे. एक होगा, इसको नाम दूंगी मैं A, और ये भी डायमीटर मीन्स दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर. जो सेंटर से पास होता है लाइन सेगमेंट, उसको बोलते हैं डायमीटर. यस, दिस वी गॉट द टू डायमीटर्स. एंड तो एक को मैं नाम दूंगी AB और दूसरा नाम दूंगी CD. तो अभी क्वेश्चन क्या है, इफ यू, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड इफ यू, अभी ज्वाइन द एंड्स. अभी ये सारे एंड्स है, एंड्स को मैं ज्वाइन करूंगी. BD, देन आई विल ज्वाइन AD, फिर मैं ज्वाइन करूंगी BC. सारे एंड्स को मैं ज्वाइन करूंगी. देन आई विल ज्वाइन AC. तो अभी ये कौन सा फिगर आपको लग रहा है,
ये इफ आई मेजर इट, एक साइड आता है 3.5, ये आता है 7.2, दिस ऑल्सो 3.5. सो ये अप्रोक्सीमेट मेजर है, आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है. ये भी 3.5 है, ये भी 3.5, ये 7, ये 7. 7.2 to 7 आ रहा है मेरा उसके बीच में. तो अगर मैं देखूं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल. सो व्हाट यू गॉट, कौन सा फिगर मिला आपको ज्वाइन करने के बाद? इट इज रेक्टेंगल. सो आई विल राइट इट, ABCD इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, बिकॉज AD is equal to CB and AC is equal to BD. दूसरा, ये सारे एंड्स जो है एंगल ABCD वो भी 90 डिग्री है, स्ट्रेट है अगर आप देखो. सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज 90 degree. If you measure with protractor, you will get as 90 degree. Now second part is, yes, now what figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other. अभी ये तो diameters perpendicular नहीं थे, तो अभी हम लोग दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे और डायमीटर्स को परपेंडिकुलर बनाएंगे. तो आपको कौन सा फिगर मिलेगा? सेम करना है, डायमीटर्स को ज्वाइन करना है. अभी कंडीशन दूसरी है. सेकेंड पार्ट वी आर डूइंग विद द सेम डायमीटर तो अगर वही सेम थिंग करना है, अगर मैं इसको दे दूंगी O, अभी डायमीटर शुड बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल हमेशा उसका 90 डिग्री होता है. दिस इज परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स व्हेन देयर एंगल इज 90 डिग्री, हमने पढ़ा है. सो नाउ आई विल टेक वन डायमीटर एज लाइक दिस and another as like this. So they should be perpendicular. एक को मैं नाम दूंगी AB और एक है CD. अगर इनके बीच का एंगल 90 है, अगर हम प्रोटेक्टर से भी देखें, अगर ऐसे ले, सी इट इज 90 डिग्री. द एंगल बिटवीन दिस टू इज 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर. तो अभी व्हाट इफ द डायमीटर्स आर, अभी इस फिगर को हमको ज्वाइन करना है. तो व्हाट यू विल गेट, सेम थिंग. फर्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर डायगोनल्स नहीं थे, सेकेंड पार्ट में है. तो आपको कौन सा फिगर मिला? पहले में रेक्टेंगल है, इसमें कौन सा है? तो इसमें अगर सब साइड्स आप चेक करें, एक आएगा 5.6, कोई भी रेडियस का सर्कल ले सकते हैं आप. ये भी आएगा 5.6, 5.6, 5.6. सो हियर आई हैव टेकन रेडियस एज 4 सेंटीमीटर. ये मैंने लिया है, इसके जगह आप कोई भी रेडियस ले सकते हैं. सब साइड्स इक्वल है. दिस इज 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 5.6, 5.6. सी हियर ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर आप ये एंगल भी चेक करो, ये भी 90 डिग्री आने वाला है. तो ये मेरा फिगर क्या बन गया? स्क्वायर. सो हियर यू कैन राइट, फर्स्ट यू राइट द रीजन. AC equal to CB equal to BD equal to DA.
कितना है 5.6। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना है 90 डिग्री। दैट मीन्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये अगर आपको लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा डार्क कर रही हूं। ओके, सो हमने कोई भी रेडियस लिया है सर्कल का, मैंने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया। ए बी और सी डी ऐसे डायमीटर है जो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री उनका एंगल है। सारे डायमीटर्स को ज्वाइन किया, एंड को, सारे साइड्स मुझे इक्वल मिले, आपको भी इक्वल ही मिलेंगे, और एंगल्स भी 90 डिग्री है। दैट मीन्स मेरा जो फिगर है ये स्क्वायर है, और पहला जो फिगर है वो रेक्टेंगल है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 2। यस, नाउ क्वेश्चन 4, draw any circle and mark points A, B, C such that A is on the circle, B part है B is in the interior of the circle, C part है C is in the exterior of the circle. You know what is in how you have to locate interior, exterior and on the circle. तो पहले हम लोग एक सर्कल बना देंगे कोई भी रेडियस का, 4, 5 एनीथिंग सर्कल बनाएंगे, फिर ए पॉइंट मार्क करेंगे ऑन द सर्कल, बी करेंगे और सी करेंगे। तो मैंने कोई भी रेडियस लिया हुआ है, इट इज 4 सेंटीमीटर आई थिंक। यू कैन टेक एनी रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल। यस, ये सर्कल बनने के बाद अभी सेंटर लोकेट करना है। यस, नाउ क्वेश्चन इज ए इज ऑन द सर्कल। यहाँ आप ए इज ऑन द सर्कल मतलब मैं यहां पॉइंट बता सकती हूं, ये हो गया ए। बी इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो इंटीरियर मतलब ये इंटीरियर रीजन होता है, दैट इज बी। और फिर बोला है सी इज ऑन द एक्सटीरियर, मतलब सर्कल के बाहर। हो गया। सो वेरी सिंपल, दिस कंप्लीट्स योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। सर्कल बनाया, 3 पॉइंट मार्क किए, ए है ऑन द सर्कल, बी है इनसाइड द सर्कल और सी है आउटसाइड द सर्कल। राइट, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 5। Here let A, B be the centers of circle of 2 equal radius. Draw them so that each of them passes through the center of the circle. Let them intersect at C and D. Examine whether AB and CD are at right angles. तो A and B are the center, वो तो मालूम है, मैं रफ बना रही हूं। ए है एक सेंटर, ये है जिसका सेंटर ए है, एक सर्कल है। दूसरा सर्कल का सेंटर है बी, लेकिन वो ए से पास होना चाहिए। ये जो सर्कल है, यस, ये सर्कल जो है ए वाले सेंटर का, वो इसके सेंटर से पास होना चाहिए। और जो सर्कल बी, जो सर्कल का रेडियस बी सेंटर है, वो ए से पास होना चाहिए, वैसे आपको बनाना है। सो हम कोई भी सेंटर रेडियस ले लेंगे, मतलब दोनों को इक्वल है। अगर हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो 4 सेंटीमीटर पहले लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर मार्क करेंगे ए, फिर यहां से एक लाइन खींचेंगे, देन इसी रेडियस के साथ हम यहां से दूसरा सर्कल पास करेंगे। देन दिस इज ए एंड बी, फिर ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, दिस इज सी, दिस इज डी। फिर हमको देखना है ए बी एंड सी डी राइट एंगल है या नहीं। ओके, सो वी विल ड्रॉ वन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होना चाहिए, वो कंडीशन है। सो आई विल टेक ऑफ 4 सेंटीमीटर, इक्वल रेडियस होना चाहिए।
यस, इसका सेंटर जो है वो ले लेती हूं मैं ओ, सॉरी, उसका सेंटर मुझे लेना है ए, बोला है इन्होंने। अभी दूसरा सेंटर सर्कल लेना है, ऐसा बनाना है कि वो ए से पास होना चाहिए। तो हाउ यू विल मेक, ये है ए, तो मैं यहां पे इस और रेडियस सेम होना चाहिए। सो इट विल बी बेटर इफ आई ड्रॉ लाइन, रेडियस सेम, दिस इज आई विल टेक बी, ये रेडियस 4 है। अभी बी एज ए सेंटर, अब मैं दूसरा सर्कल बनाऊंगी तो वो ए से पास होगा ही। सो राइट, आई विल मेक विद द सेम रेडियस, रेडियस तो वही है 4 सेंटीमीटर, अब वो ए से पास होना चाहिए। हो गया, यस। नाउ एक ए सेंटर का सर्कल बी से पास हो रहा है जो दूसरे का सेंटर है, और बी सर्कल है जिसका सेंटर बी है, वो सर्कल ए से पास हो रहा है। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब क्या करना है, लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं सी और एक डी में। अभी लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी वो राइट एंगल है या नहीं है, वो हमको देखना है। ए बी एंड सी डी ज्वाइन कर दिया, अब देखेंगे वो राइट एंगल है या नहीं है। कैसे, देखो इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है, ए बी, और अगर इंटरसेक्ट, दिस इज कमिंग टू बी 90 डिग्री। सो हियर वी हैव टू राइट, यस, ए बी एंड सी डी are at right angles, right? So this completes your question 5 and completes your exercise 14.1. Yes, exercise 14.2, very simple. First question is draw a line segment of 7.3 centimeter using a ruler. You know very well how to do it. Take one point हियर, 7.3 का एक लाइन सेगमेंट आपको बनाना है, बहुत सिंपल। यस, 7.3, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये इसको पूरा हम कर देंगे, दिस इज 7.3 सेंटीमीटर, राइट? वेरी सिंपल। Now, question 2, construct a line segment of length using ruler and compass. अभी तो लाइन सेगमेंट आपने बनाया सिर्फ स्केल से, अभी मुझे कंपास के यूज से बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, और मेजरमेंट होना चाहिए 5.6। तो आप पहले कोई भी लाइन बना दो। लाइन मीन्स हैविंग 2 एरोस, ठीक है। अभी एक पॉइंट ले लूंगी मैं ए, लाइन आई एम गिविंग नेम एज एल। नाउ आई एम टेकिंग 5.6 सेंटीमीटर इन माय रूलर। ये मैं 5.6 का मेजरमेंट लूंगी, एक 0 पे रहेगा, एक 5.6 पे, ये हो गया 5.6। अभी मैं ए एज अ सेंटर इसको कट करूंगी और ये आ जाएगा बी। तो एक पॉइंट मेरा ए है और एक बी है, और इसके बीच का लेंथ हो गया 5.6 सेंटीमीटर, राइट? So this is the method to draw a line segment using compass and ruler. Now is third one. Construct a line segment of length AB. From this, cut off AC of length 4.7 सेंटीमीटर. तो ठीक है, हम लाइन सेगमेंट AB बनाना है,
उसी मेथड से बना सकते। पहले एक लाइन बनाओ। पहले हम लोग लाइन सेगमेंट बना देंगे यूजिंग रूलर एंड कंपास। ये हो गया लाइन। अभी ए बी बनाना है मुझे 7.8, तो मैं एक पॉइंट ए मार्क कर लिया। अभी यहां पे मैं लूंगी 7.8। ये हो गया 7.8। तो अभी मैं ए बी हो गया 7.8, ये हो गया बी, ये हो गया ए। इसको मैं मार्क कर देती हूं 7.8 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम दिस कट ऑफ लेंथ AC ऑफ 4.7 सेंटीमीटर। तो अभी मैं 4.7 सेंटीमीटर ले लेती हूं। So with A as a center, ये ले लिया मैंने C, ये हो गया C, और ये जो है दिस इज 4.7 सेंटीमीटर। अभी पूछा मेजर BC, तो कितना होना चाहिए? 7.8 माइनस 4.7, सो इट शुड बी 3.1। अगर आप मेजर करोगे, यस इट इज एग्जैक्टली 3.1। तो आप लिखो BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 7.8 माइनस 4.7 is equal to 3.1 centimeter. So it is simple. So this is how you have to draw a line segment using compass and ruler. अभी क्वेश्चन है 4, given AB length 3.9, construct PQ such that length of PQ is twice that of AB. Verify by measure. If you look in the textbook, one hint is given. हिंट दिया हुआ, ऐसा हिंट दिया हुआ है। पहले आपको क्या बनाने का है? AB दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर। PQ ऐसा है कि इट इज ट्वाइस ऑफ AB। ट्वाइस ऑफ AB मतलब 3.9 इंटू 2, दैट इज 7.8। तो उन्होंने क्या किया? पहले AB बना दिया 3.9 सेंटीमीटर बाय स्केल, फिर एक लाइन बनाई, उसमें एक पॉइंट लिया P, वहां से 3.9 का कंपास में मेजरमेंट लेके यहां पे मार्क किया। अगेन विद दैट रेडियस यहां से Q मार्क किया, तो ये हो गया पूरा 7.8। सो दिस इज द हिंट गिवन। तो हम लोग करेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। सो वी विल ड्रॉ AB ऑफ लेंथ 3.9। पहले एक बना देंगे हम लोग 3.9। यस, दिस इज AB ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर। ये है, तो ये हम लोग लेंगे आपके, ये मेजरमेंट आपके कंपास में ले लिया। अभी आपको PQ बनाना है जो डबल होगा 3.9 के, मतलब 7.8। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? पहले हम लोग एक बना देंगे लाइन। इसका नाम होगा X। एक लाइन, एक लेंगे पॉइंट P। PQ बनाना है जो डबल है 3.9 की। 3.9 का डबल कितना होता है? 7.8। मैंने ये कंपास में 3.9 लिया ही था, तो विद B एज ए सेंटर आई विल ड्रॉ कट वन आर्क। यहां पे आ जाएगा पॉइंट X,
और उसी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसी रेडियस से x एज अ सेंटर मैं दूसरा लूंगी, वो हो जाएगा Q। 3.9 प्लस 3.9 कितना बना? 7.8। सो इफ यू मेजर इट, इट विल बी, यस, ये कंपास हिल गया है इसके लिए, अदरवाइज इट शुड बी 3.9 एंड 7 पॉइंट, यस इट इज कमिंग टू बी 7.9, इधर पे आएगा ये, तो ये आएगा 3.9 प्लस 3.9, सो दिस कम्स आउट टू बी 7.8। ये डबल, किसी किसी का 8 भी आ सकता है, जैसे मेरा आया है, दैट इज ड्यू टू एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी बराबर नहीं है। सो यू कैन राइट दिस एट 7.8, right? So in this way you have to do it. So this measurement of 3.9, ये आपका परफेक्ट अगर होता है तो कंपास में भी परफेक्ट आएगा और इधर भी परफेक्टली मार्क होगा, right? Yes. Now question 5th. Now given here AB is given 7.3, CD is given 3.4 and it is equal, आपको पहले हम लोग AB और CD 7.3 और 3.4 का बना देंगे, फिर हम लोग रेस्ट पार्ट लेंगे। तो 7.3, so this is AB, ये है 7.3 सेंटीमीटर, दूसरा है CD 3.4, यस ये है हमारा 3.4 सेंटीमीटर। अभी कंस्ट्रक्ट लेंथ दैट इट इज इक्वल टू द डिफरेंस। अभी ऐसा लाइन सेगमेंट एक्स वाई बनाना है कि वो ये दोनों का डिफरेंस हो। तो 7.3 माइनस 3.4, सो इट इज 9, ये आना चाहिए 3.9। तो हमारा सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होंगे। पहले हम लोग कोई भी लाइन L बना देंगे। यस, उस पे पॉइंट लेंगे एक X। तो अभी XY चाहिए हमको, तो यू कैन टेक, यस अभी 7.3 को कंपास में लेना है। आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। सो दिस इज P, हो गया। अभी हम लोग 3.4 लेंगे। तो ये पूरा हो गया 7.3। अभी इसके ऊपर ही हम लोग लेंगे 3.4। तो वी विल मार्क, तो अगर ये और इसको देंगे Y, तो ये पूरा 7.8 है, माइनस 3.4, तो कितना आना चाहिए 3.9। इन दिस वे यू हैव टू डू। सो इफ आई मेजर इट, you should get that value. Yes, it is exactly 3.9. You can see पूरा 3.9 ही है। तो मैंने ये पूरा X to P लिया है 7.3 सेंटीमीटर और PY लिया है 3.4 सेंटीमीटर।
इसके लिए मुझे XY मिला 3.9 सेंटीमीटर. Right? So you have to write XY is equal to 3.9 centimeter. Right? So this completes your exercise 14.2. Hopefully you find it easy. Any doubt is there, please ask me. Do not write questions. Directly write the answer. On Saturday I will send you 14.3 and some part of 14.4. Thank you.